Okay. Today we are discuss CLR parsing, right? So basic concept of CLR parsing is just like as SLR parsing or LR parsing, right? In previous lecture we already discussed what is the concept of parsing. So such same things applies here, right? Ambiguity is not exist in the grammar, right? Augmented protection always add in the grammar, right? Find out the canonical LR0 items, right? And then the next two processes are similar for all the parsings. It means draw the DFA and parsing tables, right? And in the last lecture, we discussed what are the why we need the different type of parsings, right? So in the theoretical sessions, we clear this thing, right? Yeah, tell me, beta. LR parsers, right? In LR parser, we focus on the four parts. First is LR0, second is LR1, third is LALR and CLR, right? Why we need different type of LR parsers, right? So in previous lecture, we already discussed conflicts, right? What is the meaning of conflicts? In a simple and sober manner, we can say conflict means when a one particular position we choose two different things, right? So we are highly confused which particular things we want grabs or which particular things we want leave, right? So that is a problematic situation. So in term of compiler designing, right, if the conflicts are occur, so this is a main problem. So how to resolve this problem? So the problem in compiler point of view are two types. First is S and R conflict. It means shift and reduce conflict. What is the meaning of shift and reduce? It means you insert something at that time you want to reduce something, right? So compiler confuse at that situation what we think is insert and right and what is to remove, right? Now, and second conflict is RR conflict. In a particular column two R entries exist. It means which R is execute first, right? So this is a problem. So one solution is provided in a part of SLR, right? So SLR means what is the meaning of one means we look ahead, right? So in previous lectures we already discussed what is the meaning of 0 and 1. So in LR0, when we put the reduce entry, we fill all the columns in terminal symbols, right? But in SLR1, we not opt this type of process. Rather than we use a different method. That different method is we find the follow of particular non-terminals and then put the reduce entries. But again the problem are same, but the problem is reduced but the problem is still remains. So how to remove that thing, right? So the one new parser in come to the picture, that is called LALR parser, right? So what is the meaning of sorry CLR and LALR? So first we focus in CLR and then LALR, right? So what is the meaning of CLR parser or LALR parser, right? So we go through the CLR parser and LALR parser, right? Today topic. CLR means canonical look ahead parser. Canonical look ahead means still in previous parsing we use the follow concept, but in this part we not use the concept of follow. Rather than we use the look ahead concept. What is the meaning of look ahead concept? It's a simple if we रियल टाइम सिचुएशंस लेते हैं, राइट? कल भी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया हुआ था। अगर हम किसी जाम की सिचुएशंस में हैं तो हम क्या करते हैं? अगर रेड लाइट्स जाम है तो हम कोई भी करेक्टिव एक्शंस परफॉर्म नहीं करते हैं, राइट? हम स्टिल अपनी गाड़ी के अंदर वेट करते हैं। बट अगर आपके पास में अननेसेसरी जाम है तो हम क्या करते हैं? करेक्टिवली एक्शन परफॉर्म करते हैं। हम आगे लेफ्ट राइट किसी भी जगह अगर स्पेस मिलता है तो अपनी गाड़ी को उस साइड मूव करके ले जाते हैं, राइट? सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ look ahead passes, right? So look ahead means we take care for the next symbol. In total compiler designing there are two types of symbols. First is non-terminal and second is terminal symbol. So such same theory apply in CLR parsing. If the terminal is occurs, so what is the corrective action? If the non-terminal is occurs, then what are the corrective actions, right? Now, so take care for these two things.
if the grammar is giving S tends to AA. So the basic need of parsing is that first we construct the augmented part. So augmented part means we construct a one more production that is called S dash tends to S, right? And second part in bottom up parsing, we construct the LR0 item. What is the meaning of LR0 item? It means you produce the dot in a right hand side production. So right hand side dot, you apply the dot in each and everywhere, right? So how to apply the dot? So first production is S dash tends to dot S. Now after dot is a non-terminal symbol. So this non-terminal symbol is further expand. So the non-terminal symbol is S, so S tends to AA. So we expand this thing, S tends to dot AA. Again, the capital A is non-terminal, so we expand this thing, capital A tends to dot small a capital A, right? So this part is complete. There is no further extension, but one more protection of A is available in this grammar, so we include this protection also, that is called A tends to dot B. Now the next part is look ahead, how to calculate or how to find the look ahead. So in earlier discussion, right, terminal and non-terminal. So when the non-terminal is occur, so without any hitch, you always use the look ahead symbol is dollar if the non-terminal is exist. If the terminal is exist, so that terminal is a look ahead symbol of that protection. For example, right, if we're talking about S tends to dot AA, after dot there is a non-terminal, so the look ahead of this protection is dollar. But in this part, capital A tends to dot small a capital A. So what is the meaning? Small a is a terminal symbol. So dollar is not a look ahead of this production. This production look ahead is A. What is the meaning of look ahead? Again, I Small reply a. these things. I explain this thing. Dot, after dot there is a terminal symbol. So this is a look ahead. It means we exactly position is dot after dot. That is called the look ahead. After dot, capital A is look ahead. After dot, small a is look ahead. After dot, small b is look ahead. So B and A are terminals. So the look ahead symbol is A or B. If the look ahead symbol is non-terminal, then the look ahead is dollars, right? So I feel the things are clear. Now move on the next part. Next part is very much similar about the LR1 सर parsing. एक बार और बता दीजिए. Okay. Sir, हाँ जी बेटा. Yeah, tell me बेटा. एक बार और बता दीजिए. Okay, sir जो right. आपने हाँ हाँ, मैं इसको दोबारा ए से A और बी ऑब्लिक जो B आया लिखा वो था जो आपने, ओके ओके टर्मिनल वो कैसे लिखा? हाँ वो ओके ए ऑब्लिक. ओके, नो इशू. देखो फिर से दो चीजें ध्यान में रखो, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल्स, राइट? टर्मिनल्स का मीनिंग क्या है? हमेशा डॉलर आएगा. टर्मिनल का मीनिंग क्या है? देखो ये आपके, सॉरी, नॉन टर्मिनल का मीनिंग क्या है? कैपिटल सिंबल. सो नॉन टर्मिनल मीनिंग कैपिटल एस. तो कैपिटल एस मीन्स डॉलर, राइट? यहाँ पे आपके पास में डॉट के बाद में देखो क्या ऑकर हो रहा है? कैपिटल ए. सो कैपिटल ए का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनल. तो जब भी नॉन टर्मिनल आएगा तो लुक अहेड सिंबल क्या होगा? डॉलर, राइट? लेकिन इन दोनों प्रोडक्शन में चेक करो, डॉट के बाद क्या आ रहा है? स्मॉल ए. तो स्मॉल ए क्या होगा? उसके आगे वाला सिंबल होगा डॉट के आगे वाला, दैट इज कॉल्ड लुक अहेड. तो इसका लुक अहेड क्या हो गया? ए. अब कंफ्यूजन हो रहा है सर स्लैश बी क्यों लिखा? क्योंकि ए के दो प्रोडक्शन है, राइट? फर्स्ट इज आपके yes sir, पास में स्मॉल ए और दूसरा है स्मॉल बी. तो स्मॉल बी जब आपके पास में हम यूज कर रहे हैं तो ए टेंस टू डॉट बी, राइट? तो जब हमने डॉट बी यूज किया तो डॉट के आगे वाला प्रोडक्शन क्या है? स्मॉल बी, दैट इज अ टर्मिनल. सो ये भी लुक अहेड हो जाएगा. सो ए के दो लुक अहेड हुए, फर्स्ट इज ए एंड सेकंड इज बी. तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ए स्लैश बी, ए स्लैश बी, राइट? एस का, क्योंकि एस आपके पास में क्या था? नॉन टर्मिनल था, तो इसका लुक अहेड हमेशा क्या होगा? डॉलर होगा. अब जो हम डीएफडी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. हम यहाँ पे क्या करेंगे? लुक अहेड को भी लिखेंगे. लेकिन जब हमने LR1 पार्सिंग पढ़ी हुई थी, यानी SLR जिसको हम लोग बोलते हैं, तो देखो इसमें आपने कहीं पे भी लुक अहेड को यूज नहीं किया है. यानी फिगर आपके पास में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही कंस्ट्रक्ट होगा, बट आपके पास में क्या चीज चेंज होगी? लुक अहेड सिंबल्स चेंज होंगे. अब ये लुक अहेड सिंबल कैसे निकलते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना. पहला पार्ट सबको क्लियर है? एज इट इज हमने जो यहाँ पे लुक अहेड सिंबल निकाले थे, ये पूरा पार्ट एज इट इज हमारे पास में I0 स्टेट होगा, राइट? अब जो पुराने मेथड से वी कंटिन्यूड ऑन दैट मेथड्स, इट मींस हम सबसे पहले किसको एक्सपेंड कर रहे हैं? एस को एक्सपेंड कर रहे हैं. तो एस को एक्सपेंड करने का मतलब क्या है? ये डॉट इसके आगे आ जाएगा. तो डॉट जब इसके आगे आएगा तो इट मींस हमें कुछ नहीं करना है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को एज इट इज राइट कर देना है.
क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट आते हैं ए को। जब एक्सपेंड किया कैपिटल ए एक्सपेंड करने का मतलब क्या हुआ, ये वाला डॉट इसके आगे आएगा, तो आप क्या लिखोगे, ए डॉट ए। अगेन डॉट के बाद अगर हमें नॉन टर्मिनल मिलता था, इन अर्लियर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है तो वी एक्सपेंड दैट नॉन टर्मिनल सिंबल आल्सो। सो डॉट के बाद कैपिटल ए मिला है तो इस ए को भी हम एक्सपेंड करेंगे, तो इस ए के कौन से आपके पास में प्रोडक्शंस हैं, यहाँ पे ए टेंस टू डॉट ए, तो अब हम यहाँ पे ए टेंस टू डॉट ए लिखेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम ए स्लैश बी यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ केवल हम क्या लिख रहे हैं, ए टेंस टू, जो इसका प्रोडक्शन है वो लिख रहे हैं, लुक अहेड नहीं लिख रहे हैं। लुक अहेड हर एक स्टेप पे अलग तरीके से डिजाइन होता है, राइट। कैसे डिजाइन होगा उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहला जो लुक अहेड सिंबल्स था, राइट, पहले वाले प्रोडक्शन के लिए क्या था, एस टेंस टू ए डॉट ए, और राइट जब भी हमारे पास में नॉन टर्मिनल्स मिलते हैं तो नॉन टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या यूज करते हैं हमेशा, नॉन टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग हम लोग हमेशा किस चीज को फोकस करते हैं, डॉलर को। तो नॉन टर्मिनल था तो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन का लुक अहेड क्या हुआ, डॉलर। आपको ये चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक स्टेप पे आपको लुक अहेड दोबारा काउंट करना है। ये स्टेप कंप्लीट हो गया, इसका लुक अहेड यहाँ नहीं आएगा, क्लियर। ये स्टेप कंप्लीट होगा तो इसका लुक अहेड यहाँ नहीं जाएगा। आप केवल किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शंस की। सो प्रोडक्शन आपके पास में क्या है, एस डेस टेंस टू ए डॉट ए, राइट। ओके, सो जब ए डॉट ए आपके पास में प्रोडक्शन है, क्लियर, तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपको क्या करना है, उस ए डॉट ए के करस्पॉन्डिंगली हम लोगों को उसका लुक अहेड काउंट करना है। तो लुक अहेड काउंट करने का मतलब क्या हुआ, डॉट के बाद चेक करो क्या है आपके पास में, ए है, कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए नॉन टर्मिनल था तो इसका लुक अहेड क्या हो गया, डॉलर। नाउ अब जब इस पर्टिकुलर पार्ट का आपके पास में क्या हुआ, डॉलर। अब जब हम नेक्स्ट स्टेप निकालते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप किसका एक्सटेंशन है, इस वाले ए का एक्सटेंशन है, राइट। तो जब इस वाले ए का एक्सटेंशन है तो हम यहाँ पे डॉट के आगे का लुक अहेड ए नहीं लिखेंगे, हम इसी पर्टिकुलर लुक अहेड को कॉपी करेंगे। तो दो रूल हो गए, जब हम फर्स्ट पार्ट में यूज करते हो तो हम हर एक प्रोडक्शन का लुक अहेड सेपरेटली काउंट करते हैं, राइट। जब हम सेकंड पार्ट यूज करते हैं एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में फर्स्ट प्रोडक्शन का आपके पास में लुक अहेड है वही सारे पर्टिकुलर प्रोडक्शंस में उस पर्टिकुलर स्टेट के प्रोडक्शंस का लुक अहेड होगा। मीनिंग क्लियर, राइट। सो अब अगर हम ए डॉट सॉरी ए टेंस टू डॉट ए कैपिटल ए यूज करते हैं तो इसका लुक अहेड स्मॉल ए ना होके क्या होगा, डॉलर होगा। लेकिन अगर यही स्टेप आपके पास में प्रीवियस वाले स्टेप पे होता तो डॉलर नहीं होता, तब इसका लुक अहेड क्या होता, ए होता। मीनिंग क्लियर है। सो अब ए के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में दो प्रोडक्शन है, हमने दोनों प्रोडक्शन को लिख लिया, यहाँ पे हमने डॉलर लिख दिया। नाउ ए3 यूज करते हैं, जब हम जब स्मॉल ए को एक्सटेंड करते हैं तो हम इस पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हैं तो हम डॉट सिंबल को यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमें क्या मिला, ए डैश टेंस टू ए डॉट ए, राइट। अब ए डॉट ए जो हमारे पास में है ये आपके पास में क्या है, इसका लुक अहेड कैसे काउंट करेंगे, तो इस लुक अहेड को हम यहाँ से जो प्रोडक्शन है केवल इस लुक अहेड को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ए डैश टेंस टू ए स्मॉल ए डॉट ए, तो यहाँ पे आपके पास में लुक अहेड क्या रहेगा, ए स्लैश बी, राइट। इसका लुक अहेड क्या था, ए स्लैश बी, हम इस प्रोडक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ए स्लैश बी। नाउ अब डॉट के बाद फिर से क्या मिला, ए मिला, तो ए मिलने का मतलब है हमें ए के प्रोडक्शन को दोबारा राइट करना है, तो ए का प्रोडक्शन फर्स्ट ये है सेकंड ये है, हमने इन दोनों प्रोडक्शंस को राइट किया। बट अब हम इनका लुक अहेड काउंट नहीं करेंगे, इनका लुक अहेड क्या होगा, एज इट इज ऊपर से कॉपी होगा, राइट। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, स्मॉल बी को एक्सटेंड करते हैं तो केवल एक ही प्रोडक्शन है तो बी आपके पास में फाइनल उस पे आ गया, ये लुक अहेड ऐसे ही कॉपी होता है, यानी फर्स्ट जो पार्ट है आपके पास में वो एज इट इज कॉपी होता है और उसके बाद आपके पास में जितने भी नीचे आपके पास प्रोडक्शन है वो ऊपर वाले लुक अहेड को कॉपी करते हुए आते हैं, राइट। नाउ अब अगर हम I1 एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि आपके पास में एस डॉट मिल चुका है, इट मींस ये फाइनल आइटम है, तो यहाँ पे हमें कुछ काम नहीं करना था। I2 पे हमारे पास में क्या मिल रहा है, देखो डॉट के बाद ए मिल रहा है, यानी हम कैपिटल ए को एक्सपेंड करेंगे और हमें क्या मिलेगा, ए डॉट एंड डॉलर। इसके बाद हमें कुछ मिल नहीं सकता क्योंकि डॉट हमारे पास में लास्ट प्रोडक्शन है। नाउ अब हम स्मॉल ए को यूज करते हैं, तो इन दिस केस स्मॉल ए इट मींस वी remove this dot from this place to shift it into right hand side, so it means a tends to small a dot a, right, and the production is copy here, that is a dollar, right, look ahead symbol.
Now after dot there is a non-terminal symbol, so we copy all the production of this non-terminal, that is called A tends to dot small a capital A and A tends to dot small b, and the look ahead symbol of these two production copy from the our production, right? Our production look ahead is dollar, so we copy the dollar in both the productions, right? Now again the b part, so b part means A Sir, tends to yes beta, yeah, tell me. Okay, I've explained the B part. So B, it means dot. After dot, we place the B. So it means A tends to B dot, or the look ahead symbol is dollar. So dollar is places here, and there is no further extension because this is a final item. Now in this part I3, whenever we extend the I3, the first production is small a, right? We extend for is capital A and then small a. So capital A means a, this dot is shifted from the right hand side, so it means small a capital A dot, right? And the look ahead is copy from this place, right? This is the first production, and if there is some other productions are available in this state, so all the productions for look ahead is a slash b, right? Now for small a we repeat this state again, and for small b we repeat I4, right? And same as for the next part, right? So I feel what is the meaning of look ahead, so you clear the meaning of look ahead, right? Look ahead means next symbol of that production. If it is a non-terminal, then look ahead value is dollar. If it is a terminal, then look ahead of particular that production is uh, that non-terminal, right? If it is a, so a is a look ahead. If it is b, b is a look ahead. If production is please combined, recommend. right? If b if production are multiple combinations, just like in this example सर a, yeah, tell me. सर I6 में A का लूप क्यों लगा है? ओके, i6 में ए का लूप क्यों लगा है, देखो अब हम अगर यहाँ पे किसको एक्सटेंड करेंगे, स्मॉल ए को, स्मॉल ए को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फिर से ये डॉट यहाँ पे आएगा, स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए, राइट? इस ए स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए, क्लियर? और फिर हम ए को एक्सटेंड करेंगे तो हमें यही प्रोडक्शन वापस मिलेंगे, तो हमें क्या कौन सी स्टेट रिपीट हो गई, सेम स्टेट रिपीट हो गई, i6, क्लियर? देखो अगर इस प्रोडक्शन को आप एक्सटेंड करते हो तो क्या मिलेगा, ये अच्छा डॉट यहाँ पे आएगा, तो यही चीज प्रोडक्शन मिला, और फिर आप एक ही प्रोडक्शन हम्म, लिखोगे तो ये दोनों प्रोडक्शन मिल गए, और सारी जगह आपके पास में डॉलर ही लगना है, तो ये स्टेट आपके पास में रिपीट हो गई, क्लियर? सो आई होप ये डीएफटी पार्ट सबको ठीक क्लियर होगा। नाउ अब आते हैं आपके पास में टेबल को फिलअप करने के पार्ट पे, राइट? तो टेबल को फिलअप करना बहुत ईज है, अगर हम लोगों ने पहले वाले टेबल्स क्लियर किए हुए थे तो यहाँ पे हम टेबल्स को बहुत इजीली फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या था, टेबल को फिलअप करने के लिए हम सबसे पहले किन एंटिटीज को डील करते हैं, जो हमारे पास में टर्मिनल्स और नॉन नॉन टर्मिनल्स टर्मिनल्स। को, क्लियर? और टर्मिनल नॉन टर्मिनल में भी हमारे पास में हम टर्मिनल्स को एक साइड लिखते हैं, नॉन टर्मिनल को एक साइड लिखते हैं। टर्मिनल सिंबल हमारे पास में हमेशा फाइनल स्टेट्स बताते हैं, राइट? नॉन टर्मिनल हमारे पास में शिफ्ट मूव बताते हैं, और फाइनल स्टेट हमारे पास में रिड्यूस मूव बताते हैं, शिफ्ट रिड्यूस। राइट? सो अगेन अगर हम स्मॉल ए की बात करें तो i0 पे स्मॉल ए पे हमें कौन सी स्टेट मिल रही है, i3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, s3। तो ये पार्ट एज इट इज है, जैसे हम लोगों ने lr0 पढ़ा था, SLR S3 पढ़ा था, राइट? ये पूरा का पूरा पार्ट एज इट इज है, जहां पे भी हमें एस एंट्री फिल करनी है या फिर आपके पास में टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स एंट्रीज फिल करनी है। वी टॉकिंग अबाउट ओनली द फाइनल पार्ट्स नाउ। तो फाइनल पार्ट्स में भी पहला पार्ट एज इट इज है, i1 हमारे पास में क्या था, जो ऑर्गुमेंटेड पार्ट था उसका उसका पार्ट था, तो जब भी हम ऑर्गुमेंटेड पार्ट्स को लेते हैं तो दैट इज द एक्सेप्टेबल स्टेट, राइट? सो दिस इज द एक्सेप्टेबल स्टेट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, i4 is a final state, right? So if i4 is a final state, so अब ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाता है क्या डिफरेंस है LR0 SLR1 और LR1 में और LARR में, तो अब आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो जब सबसे पहले हमने LR0 पढ़ा था तो हमने क्या किया था, इस फाइनल पे जो भी हमारे पास में प्रोडक्शन था, राइट, उस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंगली हमने उस पर्टिकुलर सारे टर्मिनल पे उस रिड्यूस मूव को भरा था, राइट? अगर आपको याद हो तो A टेंस टू B हमारे पास में कौन सा प्रोडक्शन है, A टेंस टू B, A टेंस टू B हमारे पास में R3 प्रोडक्शन है, राइट? देख लो
दिस वन R3, ठीक है, 1 2 3। अगर थर्ड प्रोडक्शन है तो हम लोग क्या करते थे, R3 को सारी जगह फिल करते थे। देखो अगर LR1 अगर आपके दिमाग से स्किप है तो हम लोग LR1 एक बार देख लेते हैं, राइट, क्लियर हो जाएगा दिमाग में। ये देखो हमने सारी जगह क्या किया था, R1 एंटी को फिल किया था। बट जब हमने LR1 पढ़ी, यानी जिसको हम लोग सिंपल LR बोलते हैं, सिंपल LR में हमने क्या किया था, इन नॉन टर्मिनल को क्या निकाले थे, फॉलो निकाले थे। और ऐसा फॉलो नहीं निकालने होता के था। बाद जिस जिस जगह पे फॉलो मिला था केवल उस जगह पे रिड्यूस एंटी यूज करी थी। नाउ अब क्या था, इस वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, केवल जो फॉलो पार्ट है, राइट, यानी यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है हम केवल उस जगह पे रिड्यूस एंटी फिल करेंगे। तो I4 का मतलब आपके पास में क्या है, फाइनल स्टेट है, और फाइनल स्टेट पे कौन सा प्रोडक्शन यूज किया गया है, थर्ड नंबर का प्रोडक्शन। तो रिड्यूस को कहां पे लिखना है, केवल ए और बी पे। तो देखो ए और बी पे हमने केवल रिड्यूस एंटी फुलफिल करी है, राइट, क्लियर, ओके। नाउ अब अगर हम आपसे बोलते हैं नेक्स्ट फाइनल स्टेट कौन सी है, I5। तो अगर हम I5 की बात करते हैं तो I5 में हमारे पास में क्या हो रहा है, चेक करो, I5 इज अ फाइनल स्टेट। I5 में कौन सा प्रोडक्शन यूज हो रहा है, R1, राइट, और R1 को हमें केवल कहां लिख रहा है, डॉलर पे। तो देखो डॉलर पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट फाइनल मूव देखो कौन सा है, I7। I7 पे कौन सा प्रोडक्शन है आपके पास में, R3, राइट। सो R3 को केवल अब कहां पे लिखना है, डॉलर पे। तो हमने कहां पे लिखा, डॉलर पे। फिर देखो हमारे पास में कौन सा फाइनल है, I8। I8 हमारे पास में फाइनल है, और फाइनल प्रोडक्शन का नाम क्या है आपके पास में, A टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल A। ये कौन से नंबर का है, ये सेकंड नंबर का प्रोडक्शन है, राइट। तो इट मींस हम यहाँ पे A और B में क्या लिखेंगे, R2। नाउ I9 देखते हैं, इफ चेक द I9। सो I9 में हमारे पास में क्या आ रहा है, A टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल A। ये कौन सा प्रोडक्शन नंबर है, ये प्रोडक्शन नंबर 2 है। तो अब हमने केवल डॉलर की जगह क्या लिखा हुआ है, R2 लिखा हुआ है। मीनिंग क्लियर हुआ, राइट। सो ये किसकी टेबल थी, ये टेबल थी CLR1 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, सर इसका स्टैक इंप्लीमेंटेशन। सो देयर इज नो चेंज। अगर आपने कल वाला स्टैक इंप्लीमेंटेशन पढ़ा होगा तो सेम चीज है, हम कोई भी ग्रामर यहाँ पे यूज कर लें, अब हमारे पास में शिफ्ट और रिड्यूस के मूव एज इट इज चलेंगे, राइट। अगर नॉन टर्मिनल आता है तो हम पीछे वाले पार्ट से उसका नंबर फाइंड आउट करते हैं, और अगर टर्मिनल आता है तो हमारे पास में हम आगे वाले से उसको चेक कर लेते हैं, राइट। तो ओवरऑल आपके पास में स्टैक इंप्लीमेंटेशन, अगर हम LR0 की बात करें, SLR की बात करें, CLR की बात करें या LALR की बात करें, सब जगह स्टैक इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस सिमिलर है। सो आई फील देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन द stack implementation of CLR, right? You can choose any example। for example आप CCDD ले लो, right, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, CCDD, right, इस वाले पार्ट के लिए। आप अब इस पार्ट में इस टेबल को ना यूज करके आपको कौन सी टेबल यूज करनी है, जो अभी आपने CLR बनाई थी, राइट। तो अब यहाँ पे आप इस टेबल को हटा के CLR वाली टेबल यूज करो, और वन बाई वन आपके पास जो प्रोसेस आपने समझा था उसको इम्प्लीमेंट कर लो। आपके पास CLR का स्टैक इंप्लीमेंटेशन आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ today's last parsing technique, that is called the LALR parsing, right? LALR means look ahead, right? So look ahead LR parsing, it means इसमें क्या नया है। so इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसकी पार्सिंग टेबल जो है वो अलग बनती है किससे, जो अभी आपने CLR पढ़ा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हम इस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो लुक अहेड की वजह से हमारे पास में क्या है, टेबल का साइज इंक्रीज होने लगता है। सो इस साइज को हमें रिड्यूस करना है। तो इस साइज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LALR पार्सिंग यूज करते हैं, राइट। अब LALR में क्या डिफरेंस है, तो ये पार्ट एज इट इज कंस्ट्रक्ट होगा, जो अभी हमने समझा था। तो देखो हम LALR में भी इस पार्ट को एज इट इज यूज कर रहे हैं, क्लियर। यही प्रोडक्शंस हैं, राइट, यही आपके पास में DFD है। अब केवल आपके पास में ये किसकी टेबल है, CLR की, राइट, जो हमने अभी समझी थी वही टेबल हमने यहाँ पे कट एंड पेस्ट करी है, दिस वन, राइट। यही टेबल हमने यहाँ पे कट एंड पेस्ट कर दी है। अब हमें इस टेबल को समझना है, राइट। सो प्लीज केयरफुली इस चीज को समझना। LALR बहुत सिंपल सी चीज है, आपको केवल क्या चीज चेक करनी होती है, जब आपका DFD बन जाता है तो आपको चेक करना है कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो सेम टाइप के प्रोडक्शंस को होल्ड करती हैं। सेम टाइप प्रोडक्शंस का मीनिंग है केवल प्रोडक्शंस की बात हो रही है, नॉट लुक अहेड की, राइट। तो देखो I4 में क्या लिखा हुआ है, A टेंड्स टू B डॉट, राइट, और I7 पे भी क्या लिखा हुआ है, A टेंड्स टू B डॉट, क्लियर। सो बोथ द प्रोडक्शंस आर सेम but the look ahead are different, so we don't care about the look ahead symbols, we care about only
productions. So productions are A tends to B dot and A tends to B dot. So both the productions are same. So in this part we write I4 equal to I7, right? Now again we find out the same type of condition in different state, right? So I3 check करते हैं. I3 is A tends to small a dot capital A, and this part is right I6. So I3 and I6 both are the same, right, in term of production, but the look ahead are different. But in earlier we discussed, we don't care about the look ahead symbols, we care about only production. So I3 and I6 are equal, and same as I8 and I9 are equal. Now I8 I9 ठीक, अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सर इसका करेंगे क्या हम? I4 इक्वल टू I7 है, I3 इक्वल टू I6 है, I8 इक्वल टू I9 है, तो इसका मीनिंग क्या है? तो अब जो ये टेबल है, राइट, जो हमने CLR से बनाई थी, अब हम इसी टेबल को रिड्यूस करेंगे. कैसे रिड्यूस करेंगे? देखो, I4 जहां पे भी है और I7 है, तो हम नंबरिंग वाइज क्या करते हैं, जो भी नीचे स्टेट मिलती है उसको ऊपर वाली स्टेट के साथ में मर्ज करते हैं, राइट? सो I4 और I7 को हमें मर्ज करना है, I4 और I7 को हमें मर्ज करना है. तो जहां पे भी I4 आएगा वहां पे अब हमें क्या लिखना है? I47, यानी हम 4 और 7 को मर्ज कर रहे हैं, तो 4 के बाद 7 लिखना है, राइट? तो चेक करते हैं, I4 और I7 को हम मर्ज कर रहे हैं, तो I4 I7 मर्ज करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? R3, राइट, क्लियर? और I7 में हमारे पास में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? R3, क्लियर? यहाँ पे क्या है? दोनों जगह ब्लैंक है, तो इट मींस अगर हम इसको मर्ज करेंगे तो हमें I4 पे क्या मिलेगा? R3 R3 R3, और ये I7 हमारे पास में से हट जाएगा. हमने आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, मीनिंग क्लियर हो रहा है? रेड एंट्री. अब अगर हम इस पार्ट को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम इससे डिलीट कर देते हैं, डिलीट रो, राइट? सो अब I7 हमारी टेबल में एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि हमने I7 को कहां मर्ज कर दिया था? I4 पे, राइट? क्लियर? तो अब हम इस स्टेट को I47 लिख देंगे फॉर इंफॉर्मेशन, क्लियर, राइट? सेम एज अब हमारे पास में हम दूसरी कंडीशन देखते हैं. I47 हैंडल हो गया, I3 और I6 को. सो I3 और I6 चेक करते हैं, तो I3 ये है हमारे पास में, राइट, और I6 ये है. तो यानी हमें इन दोनों स्टेट को मर्ज करना है. तो नंबर पहले क्या आएगा? 3, और उसके बाद क्या आएगा? 6. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 36, 3 और 6, राइट? यहाँ पे आपके पास में पहले से क्या लिखा हुआ है? 4, और नीचे वाले से कौन सी स्टेट मिल रही है? 7. तो हमने इसको क्या लिखा? 47, राइट? तो अब हमारे पास हमने I3 और I6 को हमने मर्ज किया था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? I36, क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास में क्या था? 9. तो इस 9 को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये पूरी की पूरी स्टेट क्या हो गई? मर्ज हो गई, क्लियर? जब स्टेट हमारे पास में मर्ज हो गई हैं, तो अब हमें क्या करना है? इस वाले पार्ट को भी हटा देना है. तो हमने कौन सी स्टेट मर्ज करी थी? I6. तो हमने आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ था I6 का पूरा पार्ट हमने कहाँ कॉपी कर दिया? I6 रिमूव I6 रिमूव कर दिया और इसको I3 पे हमने कॉपी कर दिया, राइट? तो अब ये रो भी हमारे पास हट गई. मीनिंग क्लियर हुआ? तो देखो टेबल साइज रिड्यूस हो रहा है, मीनिंग क्लियर है? नाउ अब हमारे पास कौन सी स्टेट बची है? I8 और I9. I8 और I9 में हमें क्या करना था? इस R2 को ऊपर लिखना था और I9 को भी रिमूव कर देना था. तो हमने इस I9 को भी रिमूव कर दिया, राइट? ओके. नाउ अब जो हमारे पास टेबल है वो ये बची, क्लियर? I8 और I9 को हमने रिमूव किया है, तो ये I89 हो जाएगा, क्लियर? तो जिन स्टेट्स को हमने मर्ज किया उनके नंबर देखो चेंज हो गए हैं. I36, I47, I89, राइट? रिमेनिंग जगह आपके पास में देखो रिड्यूस सारी जगह आ गया, यहाँ पे ये दोनों कॉलम मर्ज होके यहाँ पे आ गए. अब इस टेबल में हमारे पास में कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑकर नहीं होगा, राइट? ये इस टेबल या इस पार्सिंग की आपके पास में एडवांटेज है, राइट? और ये आपके पास में किसका एक्सटेंशन है? अगर हम देखें तो ये एक्सटेंशन आपके पास में किस चीज का था? CLR का. और अगर हम CLR की बात करें तो CLR किसका एक्सटेंशन था आपके पास में? सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था LR0 का, SLR का. और SLR हमारे पास में किसका एक्सटेंशन था? LR0 का. मीनिंग क्लियर हो रही है चीज, राइट? तो अब सारी पार्सिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट? क्लियर? तो जब सारी पार्सिंग हमारे पास में क्लियर हो गई, तो अब हम लोग एक बार रिकैप लेते हैं सारी पार्सिंग के बेसिस पे कि हमारे पास में, जस्ट अ मिनट,
अगर हमारे पास में सारी पार्सिंग हमने कंप्लीट कर ली तो हम क्यों किस पार्सिंग को किस समय यूज करेंगे, राइट, या एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, राइट। लास्ट वाला पार्ट समझ में आया। LALR हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि आपके पास में LR0 का सबसे एडवांस पार्ट है, राइट। तो जब LR0 का सबसे एडवांस पार्ट है तो आपको मीनिंग क्लियर है कि आपको क्या करना है। अगर हमें LALR पूछ लिया गया तो इसमें सबसे LR0 भी पूछ लिया, SLR भी पूछ लिया, TLR भी पूछ लिया, और एट द लास्ट LALR तो कंप्लीट नहीं है, राइट। तो इस टेबल में आपके पास में क्या हुआ, टेबल साइज रिड्यूस हुआ, जो हमारे पास में कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम थी वो रिमूव हो गई, राइट। तो ओवरऑल हमारे पास में पार्सिंग की जो प्रॉब्लम थी वो हमने यहाँ पे आके सेटल आउट कर ली। अब हम लोग स्टार्ट पे आते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं पार्सिंग का, राइट। पार्सिंग में हम लोगों ने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, पार्सर से, राइट। पार्सर में हम लोगों ने दो तरीके के पार्सर क्लासिफाइड किए थे, टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर, राइट। जब हम टॉप डाउन पार्सर की बात करते हैं, बॉटम अप पार्सर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास में टॉप डाउन को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट इज LL1, तो एग्जाम में टॉप डाउन पार्सर में मोस्ट ऑफ द टाइम LL1 पूछी जाती है, तो फोकस ऑन LL1, राइट। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का आपको मीनिंग बताया था, इज नथिंग एल्स, जैसे हम लोग सी में रिकर्सन का प्रोग्राम यूज करते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था। इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, but the numerical point of view LL1 is most important, right? Now the second parsing question come from the bottom up parser. In bottom up parser the theoretical questions most of the time arises from the operator precedence parser. In starting of the lecture I discussed leading and trailing, what is the meaning of lead and trail. So this is a part of operator precedence grammar. In Saturday lecture we discussed what is the meaning of leading and trailing and how to calculate leading and trailing, right? Okay, and LR parser is most important in exam point of view, so it means LL1 and LR, right? One most important question, what is the difference between LL parsing and LR parsing, ये क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेकंड डिफरेंस पूछा जाता है, what is the difference between LR0 and LR1, so don't confuse with LR1, LR1 means SLR, right? क्लियर। सो इन LR पार्सिंग हम लोग क्या करते हैं, LR0 आइटम्स को काउंट करते हैं। LR0 जब आइटम्स हम काउंट करते हैं तो इसका मीनिंग हमारे पास में क्या हुआ, हम जब भी चीजों को डिफाइन करते हैं तो हम डॉट सिंबल को यूज करते हैं। जब हम डॉट सिंबल यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है हमारे पास में, कि हम डॉट को सबसे पहले राइट हैंड साइड पे डिफाइन करते हैं, राइट। जब हम राइट हैंड साइड पे डिफाइन करते हैं तो हमें क्या करना है कि उस डॉट को हमें तब तक शिफ्ट कराना है जब तक कि हमारे पास में हमें फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिल जाता है, राइट। जब हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा तब हमें क्या करना है, हम उस फाइनल प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंगली, राइट, आपके टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी वो हमारे पास में रिड्यूस पार्ट होगा, क्लियर। और अगर फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो हमें ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करना होता है जब तक कि हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट हमें अचीव नहीं हो जाता, क्लियर। तो ओवरऑल आपको चीजें समझ में आई होंगी, पार्सिंग में क्या पार्ट था या पार्सिंग किस तरीके से इंपॉर्टेंट थी हमारे पास में, क्लियर। और एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आपके पास में पार्सिंग के दो मिनिमम क्वेश्चन आपको हमेशा लॉन्ग में मिलते हैं, फर्स्ट इज LL1 एंड सेकेंड इज LR। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस और आपके पास में रिकर्सिव डिसेंट पार्सर से मिलते हैं। तो ओवरऑल 70 नंबर के पेपर में 30 नंबर्स के क्वेश्चन आपके पास पार्सर से आते हैं, राइट। तो इम्पोर्टेंट है, राइट। आपको एक बार गो थ्रू करना है। सारी पार्सिंग हम लोगों ने बहुत आराम से समझी हैं। LR1 पार्सर्स क्या होता था, CLR पार्सर्स क्या होता था, राइट। और पार्सिंग से पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो आपके पास हिडन है, दैट इज कॉल्ड द ग्रामर, राइट। जब भी हम पार्सल्स की बात करते हैं तो हम लोग किस चीज पे पहले फोकस करते थे हमारे पास में, कि वो ग्रामर आपके पास में लेस रिकर्सिव तो नहीं है, अगर है तो उसे कैसे रिमूव करना है। तो इसीलिए पूरा पार्सिंग का पार्ट आ जाता है। तो पार्सिंग 30 to 40 नंबर्स आपके पास में आपके पेपर में लाई करती है, राइट। सो अब अगर किसी को कोई भी पार्सिंग में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। लीडिंग एंड ट्रेलिंग के कॉन्सेप्ट्स हम आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। सो पार्सिंग आपके पास में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद के कॉन्सेप्ट्स इजी हैं, राइट, और उसमें लिमिटेड क्वेश्चन सेट बनते हैं, यानी वही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएंगे, राइट। बट पार्सिंग में न्यूमेरिकल फिक्स नहीं है, कुछ भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, राइट। बोलो बेटा। सर ये PDF शेयर कर दीजिए। PDF ओके बेटा, सारी PDF शेयर कर देंगे। पार्सिंग कंप्लीट हो गई है, राइट। कल हम आपको शाम को सारी पार्सिंग के जो भी PDF हैं वो सारी शेयर कर देंगे, राइट, क्लियर।
टॉप टू बॉटम, यानी आपके पास में टॉप डाउन Thank पार्सल you, से sir. लेके और बॉटम अप पार्सल तक। ठीक है, क्लियर? थैंक यू। अगर कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अभी, Thank you, sir. है ना? ओके, तो क्लास एंड कर रहे हैं बेटा, राइट? अभी नहीं है, थैंक यू सर। ओके, यस सर। अटेंडेंस अटेंडेंस हो गई है बेटा, ठीक है? कल मिल जाएगी। सर मेरी नहीं लगी है, तुषार गुप्ता। 53 स्टूडेंट से सर बेटा मेरी भी मैक्सिमम। नहीं लगी है। बेटा कब की? आज सर की? मेरी भी। आज की? मेरी भी। नहीं बेटा, आज की या सर अभी अभी की? अभी एक की मिनट, अभी एक मिनट रुक जाओ बेटा, अभी मैं अभी की सर काउंट- अभी की। हाँ हाँ, एक अभी मिनट की बेटा। सर। हाँ बेटा, तो सार बेटा है मेरे पास में रिकॉर्ड, ठीक है, राइट? और कौन था तुषार के अलावा? सर अब सिमरजोत से सुमेश अग्निहोत्री। सुमेश साधन जी का सर अजय सिमरजोत से। ओके, ठीक है बेटा। सर हर्षित त्रिपाठी। बेटा मेरे पास सिर्फ एक मिनट, Sir, Divyanshi. हाँ एक मिनट बेटा, मेरे पास है 53 स्टूडेंट सारे, जितने भी हमारे पास सर सत्संग श्रेया हैं। दीक्षित। सर कोमल पाठक। है बेटा, आपके पास में हम आपको अटेंडेंस भी शेयर कर देंगे, सारे के सारे जितने लोग इस समय हैं, राइट, एक्सेप्ट वन जो, राइट, अभी ये कोई आउट हुआ है या डिस्कनेक्ट हुआ है, तो टोटल 53 स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट थे, उनकी अटेंडेंस लग गई है, राइट? तो क्लियर, तो डोंट वरी अबाउट द अटेंडेंस, क्लियर? यस ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।